नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की नदियों पर। क्यों नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा, वहां की नदियां क्यों प्रदूषित हो रही हैं, क्यों पोल्यूटेड हो रही हैं, क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में नदियों का पानी हाईली एसिडिक हो रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये भी कहा है कि 60 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं नॉर्थ ईस्ट में। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईटी गुवाहाटी से मौजूद है प्रोफेसर चंदन मोहंता। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चंदन मोहंता आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा जी। प्रोफेसर चंदन, मैं जिस तरह भारत की अगर हम बात करें तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। 122 देशों में से हम 120वें स्थान पर आते हैं जब वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है। खास तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट के हम स्टेट्स देखें तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है वो मेघालय और आसाम में देखा जाता है। तो क्या वजह है? क्या अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग इसकी वजह है? क्या अर्बन इलाके ज्यादा पोल्यूटेड दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? अगर हम देखें तो शहर, सिटीज और टाउन के इलाकों के आसपास जितनी नदियां हैं वो ज्यादा प्रदूषित है। क्यों अनट्रीटेड वेस्ट नदियों में गिराया जा रहा है? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्यों नॉर्थ ईस्ट की नदियों पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रोफेसर महंता। Thank you, Purnima ji. Thank you for taking interest in the rivers of the Northeast. जी Yes, you are very correct that Central Pollution Control Board has identified 60 stretches, and I think this is dynamic. If today they conduct a survey, that number may go up also. But we should realize that this is not really the entire picture. The context is very important. जी If you look at the rivers of the Northeast, uh, primarily they are very pristine. In fact, I would say, many people, in fact, we feel saying that there are rivers and rivers, and then there are rivers of the Northeast. These are very different rivers coming from the Eastern Himalayas. And contrast is that for a large part of its flow, till it reaches the valley, the urban installations, they are fairly clean. In fact, you can still today drink this water straight from the rivers and the streams and the springs. Unfortunately, as it happens for any urban system, as it reaches human population, starting from addition of excreta and other sort of contaminants, then subjected to industrialization, all these rivers start getting different loads of water quality detrimental substances. जी They may you be physical, they may be chemical, they may be biological. So you the are size very of the right that, rivers, yeah, yes, yes. you're very right that the rivers are very pristine, but Arunachal Pradesh and Sikkim have clean water, and pollution in Manipur, Mizoram, and Tripura is localized near urban areas, and many stretches of Assam, Meghalaya, and Nagaland are highly polluted due to unscientific coal mining, as we are reading in the reports. And in Meghalaya's Jaintia Hills, the river water is highly acidic. Somewhere it's like with pH value of around 3. So it is contaminated, it is by toxic metals, and the situation is not good in these areas. That is, I would agree, is a different story altogether. The rivers, for example, of the Meghalaya, if you have heard of this, rat hole mining of coals in Meghalaya, and these coals are not really of very high grade, so they contain a lot of sulfur. And as a result, the water that is coming out of the Meghalaya coal mines are getting very acidic. Now, why this is happening? Primarily, this coal, as I said, has got sulfur, and also you know that Meghalaya has some of the high rainfall pockets. Cherrapunji is the highest rainfall area of the world. So these water coming in contact with sulfur create, dilute sulfuric acid, and that water is spreading all over because of this high rain and high flow of those rivers. And many of these rivers are going towards Bangladesh. Some of them are coming to mainland Assam. That's a clear problem. That is why right now the National Green Tribunal, I think so far it is still valid, have
imposed a ban on coal mining in Meghalaya. But then the damage has been so long that the water is still flowing with acidic water. The rivers are still flowing with acidic water. And there is no clear treatment when the entire river becomes acidic. It's a huge money. The government Meghalaya is trying to get in some Korean technology and other firms to help out, but it's very, very cost prohibitive. And the same story is also in the Dihing Patkai and the peripheral Naga region where Coal India have been mining coal through open cast. And there are a lot of hue and cry lately. The problem is clear and obvious. And also it is, as it happens in many cases in India, that we retrospectively realize that these problems have now gone out of hand, and we think of what are the damages to paddy fields. For example, the acid mine drainage of the Dihing Patkai region is affecting the adjoining paddy fields. There are a lot of newspaper reports and concerns by NGOs also. In fact, it is in the news currently for more coal mining, more leasing out to be happening. And I have a understanding that perhaps the Coal India is reconsidering its decision to make more coal mining happening in those areas. So these acidic stretches have become devoid of aquatic life, and they have affected agriculture also and other traditional livelihood options of the people. And as mentioned in some reports, that the Kopili hydroelectric project, which receives acidic water from Jaintia Hill, is also affected due to corrosion and metal parts. Absolutely. Kapili, I had attended a few very high-level meetings that because of this acidic water coming down from the coal mines of Meghalaya, and also it, as it becomes acidic, it can also bring in other contaminant heavy metals in the water in a dissolved form. But primarily because of this low pH water, the Kapili reservoir is actually eating out some of the underwater appurtenances of the hydropower project. And there was a disaster just about a few years back when some pipelines, which are supposed to be lasting for a longer time, but because of maybe internal corrosion by this water, burst out, and it actually washed away part of the project, and there's a big debacle happening. And right now, also, we don't know, many of these appurtenances of the project might have been affected at differential level by this acidic water. I'm aware that the company had been trying to put some, methodology like epoxy and other coatings to underwater appurtenances so that they are more resistant to the acidic water. But again, it's a matter of time. These are not really very long-term solutions. It's a clear problem. You have very correctly highlighted that apart from, the typical health problem coming, which can happen by people consuming this acidic water with other toxic metals like lead and chromium and nickel, or maybe other trace metals present in the rock. But also industrially, it can actually be a facilitator of a bigger disaster. Yeah. So it is also affecting agriculture activities in the area too. How in your observation and in your reports and in your research, have you found that how it is affecting agriculture in the Northeast? As I said, it has got detrimental effect. There are reports that the paddy that earlier used to give, say, a certain quintal of rice in a certain area has gone down. Some of the, seeds are not forming properly. There are still not very established studies to clearly say what are the detrimental effects. But you can understand when pH of the level of 3 or 3.5 water come down to paddy field, all kind of damage can happen. Many of these paddy fields have some, aquaculture like, fish and all that. So clearly fish cannot survive there. If you go to the Meghalaya rivers, it's all crystal clear. There's no fish, there is no vegetation in the river per se. You can smell acid from a distance. Similarly, the Dihing Patkai region also. So the lower part of those areas, I'm sure they are getting affected. Many areas maybe over a period of time become unproductive and barren. So the damage is very clear. And apparently, I don't see treatment as a solution. Rather, the source containment, could be a way. But because of so-called developmental pressure, the mining and the coal is so important, I would say that maybe
more stringent regulation, particularly the enforcement part of it, is extremely necessary. The State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board, but there may be also other surveillance mechanisms to see that we have beautiful established laws to restrict this kind of activities. But I would maintain a little reservation about their enforcement. आपने बहुत एक बात जो कही कि आप दूर से यू कैन स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस एसिडिक वाटर such is the level of such is the intensity of pollution there in the river. It must be as we have been discussing that it is affecting the agriculture, the aquatic life, and there must be some health hazards too. If people drink such water, then what sort of disease they can have or they can develop? मैं खुद गया हूँ बिकॉज मेघालय के जो रिवर्स है वो हमने सैम्पलिंग भी किया है एंड वी फाउंड द सेम रिजल्ट इन पीएच इज वेरी लो. ऑफ कोर्स हमने इतना नहीं किया कि उसमें कितना सारा ट्रेस मेटल वगैरह है. I actually put one of my PhD student Vivian, who is a Khasi boy, to do a research there. So we are looking at it. Primarily, जो मैंने कहा कि सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, then that acid उसी रॉक से जो उनमें इनहेरेंट जो ट्रेस मेटल्स है, लेड वगैरह जो क्रोमियम कार्सिनोजेनिक है और कैडमियम है, तो ये भी इसमें डिजॉल्व फॉर्म में आ जाता है. तो ये पानी जब बह के नीचे आ जाता है वैली एरिया में, वहाँ पे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि पानी ऊपर से कैसा पानी आ रहा है. वो तो पानी पानी ही होता है. तो ये लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं पीने के लिए, खास करके इरिगेशन के लिए. तो ये ट्रेस मेटल जो है अभी पब्लिश पेपर्स है टेक्निकल जर्नल्स में कि कई बार ये ट्रेस मेटल बायो अपटेक से कुछ पर्टिकुलर फसल पे या कुछ पर्टिकुलर फ्रूट पे भी आ जाता है. तो जो कि पर्टिकुलर ग्राउंड जोन जो होता है इस इरिगेशन, जैसे आर्सेनिक का अभी स्टडी है कि वो इवन राइस का ग्रेन में भी जा सकता है. तो इससे तो क्लियर हेल्थ हैजार्ड हो ही रहा है कि पानी डायरेक्ट पीने से आपको टॉक्सिक मेटल कुछ लेवल पे आपका बॉडी पे जा रहा है, इकोटॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है. और फिर इनडायरेक्टली जो फसल होता है उसके अंदर उस ट्रेस मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है. ये भी एक स्टडी बहुत सारा है अभी ऑलरेडी. तो आप जो कह रहे हैं कि हेल्थ का हैजार्ड तो बिल्कुल क्लियर है इससे. जी. तो ऐसे में ये तो हमने अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है या हाईली एसिडिक हो गई है रिवर्स कुछ स्ट्रेचेस में, उस पर बात की और किस तरह से लोगों में कार्सियोजेनिक है अगर वो ऐसा पानी पी रहे हैं, कैंसर भी लोगों को हो सकता है. इस पर भी शायद एक स्टडी की जाने की ज़रूरत है. साथ ही जो अर्बन इलाके हैं, अर्बन पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में डंप किया जा रहा है अनट्रीटेड वेस्ट नदियों के अंदर, और वो अर्बन स्ट्रेचेस पे भी नदियाँ पोल्यूटेड हैं. तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या म्यूनिसिपैलिटीज़ वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो हैं वो जो ये स्टडी आ रही है कि और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी जो ये स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए हैं 60 के करीब, इसको जब देखा जाता है इस तरह की रिपोर्ट्स को, इस तरह की खबरों को, तो कई बार आप ये एक अलर्टनेस अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है. और क्या जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत नहीं है म्यूनिसिपैलिटीज़ की? जैसे आप गुवाहाटी के जिक्र करेंगे तो यहाँ पे जो अर्बन रिवर है भरलू, वो तो ऑलरेडी सीपीसीबी ने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड, इनफैक्ट आई थिंक विद इन द टॉप 10 पोल्यूटेड रिवर में से है कंट्रीज का. तो वो तो है. और उसमें खास करके पोल्यूशन जो आप कह रहे हैं कि सीवेज के कारण ही है, बेसिकली म्यूनिसिपल वेस्ट है. क्योंकि ये एक सिटी है, वो म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ सीवेज के साथ कुछ जो मेटल वगैरह इंडस्ट्री से और भी चीजें भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें आ रहा है. और फिर बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो कि फ्लोटिंग होता है खास करके. तो एक बहुत बड़ा सा न्यूसेंस सा हो गया ये. और इसका मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, जो कि अभी गुवाहाटी में ऑलमोस्ट नहीं है. एक दो था, वो भी ऑपरेशनली अभी इफेक्टिव नहीं है. प्लानिंग चल रहा है. जीएमडीए गुवाहाटी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर जो स्मार्ट सिटी मिशन भी है. मेरी जानकारी है कि बहुत सारे स्कीम्स अभी हैं इनके पास, वो आने वाला है. तो हो सकता है कि सुधार हो जाए.
प्रॉब्लम तो इट इज देयर इन प्लेस, क्योंकि अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अलग सीवरेज लाइन भी नहीं है। तो बहुत सारे लैट्रिन्स वगैरह है जो कि सैनिटरी लैट्रिन नहीं है, तो उसमें सीवेज सर्फेस मैनेजमेंट का सवाल है। ऑलरेडी देयर वर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एडीबी एक्सेट्रा, तो वो भी कोशिश चल रहा था वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो उसमें ध्यान है। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी काफी फैल चुका है, और फिर इस कारण से उसको मिटिगेट करके एक लेवल तक लाना इट्स ए मैटर ऑफ मेनी इयर्स, देन ऑल्सो मैटर ऑफ की बहुत सारे कैपिटल आपको चाहिए। अभी लग रहा है कि काम कुछ हो रहा है, बट यू आर वेरी राइट। अर्बन एरियाज में गुवाहाटी इज द मेन सिटी कैपिटल है, लेकिन डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, मीडियम लेवल सिटीज है, जिसमें और एक प्रॉब्लम है कि अभी जैसे बारिश के सीजन में वाटर लॉगिंग बहुत होता है, तो ये जितने सारे सीवेज है वो बिल्कुल चारों तरफ फैल जाता है, तो इट मे अगेन लीड टू स्किन डिजीज वगैरह, बहुत सारा और प्रॉब्लम्स होंगे। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गया अगर ये पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर किसी तरीके से घुस जाए तो दिस रिस्क आर वेरी एस्टेब्लिश। और ये तो मतलब रिवर मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन जाता है कि हाउ देन वी मेंटेन। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, मैं जो बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, कि ये सारे नदियां एक दो तरीके का नदी होता है, कि एक तो जो लीन फ्लो में पानी जब बहुत कम होता है दिसंबर जनवरी में, इसमें एक वाटर क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो भरलू बिल्कुल सब नाला बन जाता है, बहुत ही गंदगी, बहुत ही स्मेल और बहुत ही कंसंट्रेटेड पोल्यूटेड उसमें होता है। अभी अगर आप भरलू को देखेंगे, इसमें जितने पहाड़ियां है गुवाहाटी का, उसका मिट्टी वगैरह आके बिल्कुल लाल रंग का पानी है, उसमें वो जो कंसंट्रेशन वाली चीज होती नहीं है। दैट प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ टेम्परली नहीं है, लेकिन अब फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, और जितने सारे गंदगियां उसमें थे, तो वो क्योंकि ब्रह्मपुत्र में जो भरलू गिरता है वहाँ का लेवल जो ऊपर हो जाता है, तो ये स्लूइस गेट वगैरह बंद हो जाता है, तो जिस अंदर की जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता है, और ये बिल्कुल सिटी के अंदर फैल जाता है, तो और हर एक टाइप की बीमारियां वगैरह होना शुरू होता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई सर्वे या साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिससे आप मतलब कोरिलेट या एस्टेब्लिश कर सके कि ये बीमारियां इसी कारण से हो रहा है। लोगों को पता तो है, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी ऐसे ही चल रहा है। आई थिंक देयर आर अटेम्प्ट्स, देयर आर एफर्ट्स, देयर आर फंडिंग। हो सके कि इसको आगे थोड़ा संभाला जाए, मिटिगेट किया जाए। जी। आप तो इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करूं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं नदियों के, वो क्या मेघालय और आसाम में है? और जितना भी पोल्यूशन है, चाहे वो अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग से है, चाहे अनट्रीटेड अर्बन वेस्ट से है, तो आप समाधान क्या देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जो परिस्थिति, जो हमारे चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, उनसे पार पाना मुश्किल होगा, या कुछ समाधान अभी संभव है? और किस तरह की मुहिम चलाई जानी चाहिए लोगों की तरफ से, और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ? समाधान संभव है, कठिन है लेकिन संभव है, और इसमें सबका सहयोग तो जरूरत होगा। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से कई साल पहले, कि पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिवर्स, वो बिल्कुल हमने उसके जरिए हर एक स्टेट हम गए थे, मिजोरम में आइजल गए थे, कोहिमा गए थे, इम्फल गए थे, गैंगटॉक गए थे, सारे कैपिटल्स में, क्योंकि उसमें पोल्यूशन ज्यादा था। तो वो सारा मैपिंग हम करके मिनिस्ट्री को दिया था, एक बहुत बड़ा रिपोर्ट उसमें दिया था। ये सीपीसीबी का नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर दिया था, ये एनआरसीपी के अंदर था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और उसमें हमने सारे पोल्यूटेड स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया, इवन छोटा बड़ा कुछ भी हो। तो एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई कि किस कारण से, कहाँ पे क्या ज्यादा है, किस कारण से हो रहा है, तो उसको लेके एज ए बेस डॉक्यूमेंट, आज तक तो फिर और भी बदल गया होगा, एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बन सकता है। और ये पोल्यूशन जो है ये अलग अलग कारण से है, तो उस कारण के हिसाब से आपका सोल्यूशन भी, समाधान भी उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। कहीं में शायद एफसीपी वगैरह चाहिए, लेकिन हमें पता है कि एफसीपी बहुत लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करता है,
तो हमें बहुत सारे बायो इंजीनियरिंग डिवाइसेस चाहिए जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड वगैरह, जो कि लॉन्ग टर्म है, खुद जी वो रेगुलेट करता रहता है काफी हद तक एज ए टर्शियरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो टेक्नोलॉजिकली इफ यू आस्क मी, वी हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस. We have integrated solution, we have composite solution. We can even simply, अगर हम नदी के अंदर बहुत सारे एरेटर लगा देते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका इम्प्रूव होता रहे थ्रू फाउंटेन्स एंड एरेटर, उसी से काफी बदलाव आ सकता है. कम से कम उसमें मच्छी वगैरह होंगे, इट विल बी मच बेटर एनवायरनमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ कम से कम, क्योंकि बीओडी लेवल जो होता है वो एक लेवल के अंदर रहने से उतना खतरनाक नहीं होता है. जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन हमेशा सभी रिवर को चाहिए, सभी वाटर बॉडीज को चाहिए. और असम में खास करके नदी के सिवा भी 3,500 से भी ज्यादा वेटलैंड्स है, जो कि बारिश के टाइम में ये सारा पानी उसमें जमा हो जाता है. ये भी बहुत पोल्यूटेड हो गया. गुवाहाटी सिटी के अंदर कम से कम 1 दर्जन करीब छोटे बड़े ऐसे तालाबे हैं जिसका पानी बहुत बढ़िया था पहले, अभी नहीं है. तो ये सारे ना थ्रू सम फिजिकल मैकेनिज्म, थ्रू ट्रीटमेंट, थ्रू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो सकता है. अब लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बैंडेज सोल्यूशन से ही काम नहीं चलेगा. देयर ऑल्सो हैज टू बी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट. लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है. डंपिंग जो होता है सॉलिड वेस्ट का, डंपिंग जो होता है केमिकल वेस्ट का, इतना सारा ये सब तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए. तो एक तरीके से एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, दूसरा जो है कि ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, थर्ड एक ओवरऑल म्यूनिसिपल मैनेजमेंट का सवाल आएगा, इंसेंटिवाइजेशन डिसइंसेंटिवाइजेशन का सवाल आएगा, उसमें फंडिंग का सवाल आएगा. तो मैं ये कहूँगा कि संभव है लेकिन कठिन है, क्योंकि उस टाइप का एलोकेशन संभव कई बार नहीं होता है. बट फाइनली आई वुड से कि जो प्रिस्टीन रिवर्स है, जो प्रिस्टीन स्ट्रेचेस है अपस्ट्रीम में, उसका मेंटेनेंस तो कम्युनिटी ही कर रहा है. और इनके पास काफी सारा ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह है. ये रिवर को एक हिसाब से पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से गंदगी भी नहीं फैलाते हैं. तो देयर आर मेनी वेज. अभी जो लग रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो समझते नहीं है. वी आर वेरी सेल्फिश एज ए ह्यूमन बीइंग. वी आर कंटिन्यूइंग टू पोल्यूट डिस्पाइट नोइंग कि द सिचुएशन इज सो अलर्मिंग. अभी तो फिलहाल ये चर्चा चल रहा है कि कोविड का जो स्पेसिस है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल पानी में आ रहा है, तो क्या उससे कोई खतरा हो सकता है. ये सब सवाल भी आया है. कम से कम 20-25 हजार पेपर्स निकला है लास्ट फ्यू मंथ्स में कोविड के ऊपर ही. उसमें काफी सारा पेपर्स है कि कोविड का लोडिंग जो होगा वेस्ट वाटर पे वो कैसे हैंडल किया जाएगा, उससे क्या खतरा है. तो दीज आर इवॉल्विंग एंड इमर्जिंग इश्यूज. उसमें ध्यान देना पड़ेगा. आई वुड से वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. जैसे कहा जाता है कि वी शुड नॉट हैव रेगुलेशन टू स्टॉप अस फ्रॉम किलिंग आवरसेल्व्स टू क्विकली. हमें हमेशा रेगुलेशन का ही डर रहता है. तो इंडिया में तो ये कहा जाता है कि अनलेस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टॉप्स यू, यू विल कंटिन्यू पोल्यूटिंग. तो ये नहीं होना चाहिए. ये एक अपने आप पे सबका जिम्मेदारी होना चाहिए कि वी रिवर और रिवर्स, वी कीप देम वेल. अभी भी नॉर्थ ईस्ट में मैं समझता हूँ कि थोड़ा चांसेस है कि पोल्यूशन लेवल इतना भी नहीं है. स्ट्रेचेज है 60 से ज्यादा ही है सर, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं है, और खास करके वो डाउन स्ट्रीम में है. लेकिन आप अगर समझे कि आप स्ट्रीम में अगर उसको टैप करते हैं, उससे वाटर सप्लाई होता है, फ्रेश वाटर, जो कि हम बोटल्स में खरीदते हैं अभी, तो ये पानी तो सारा हिमालय से आएंगे. इससे बिजनेस बनेगा, इससे लोग अच्छी पानी पियेंगे. तो देयर आर ऑल दीज इश्यूज. आई वुड नॉट से कि इतने कम समय पर मैं पूरा आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नदियों पे और ज्यादा ध्यान होना चाहिए पूरे देश में, और खास करके नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश के लिए जो फ्रेश वाटर फ्रंटियर, जो लास्ट फ्रंटियर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है. यहाँ का नदी को अगर प्रोटेक्ट करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम जैसे ब्रह्मपुत्र को अगर हम गंगा ना बनने देंगे तो बहुत बेहतर होगा सबके लिए. जी, ब्रह्मपुत्र को गंगा ना बनने देंगे, इसका मतलब है कि उतना पोल्यूटेड नहीं होने देंगे, उतना पोल्यूटेड ना बनने देंगे. हाँ, मतलब मेरा मतलब वो, क्योंकि हम वाटर क्वालिटी पे चर्चा करें, मैं उसी एंगल से बोल रहा हूँ. जैसे अभी गंगा का रिमेडिएशन के लिए आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है. मैं समझता हूँ कि ब्रह्मपुत्र को अभी से अगर ध्यान में रखेंगे तो उतना खर्च शायद नहीं करना पड़ेगा, उससे काफी बेहतर पानी इधर से देने के लिए. आप क्या मानते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं,
और जिस तरह आपने इसमें कहा कि एसटीपी लॉन्ग टर्म में उतना असरदार नहीं होता, तो प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कचरा डालने से रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों में जाने से रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हमेशा अ, अच्छा इसलिए भी रहता है कि उसका खर्चा बहुत कम होता है। अगर पोल्यूशन हो गया, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, उसका जो संभालने का खर्चा है, उसका जो हेल्थ कॉस्ट है, अगर हजारों लोग बीमार पड़ गए, कुछ देशों में ऐसा है कि वहां पे नदियों में अगर कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट आ गया तो 72 घंटे के लिए पूरा पानी उसमें इंटेक ही बंद कर देता है कि वो कंटामिनेशन बिल्कुल नदी से निकल जाए। क्योंकि एक बार अगर वो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में आ गया कि हजारों लोग बीमार पड़ गए, आप समझे कि उसका मेडिकल कॉस्ट कितना आएगा। तो ये तो देख भी नहीं रहे लोग कि गंदा पानी पीने के कारण से कितने डिजीज बर्डन कितना बढ़ गया, गवर्नमेंट को कितना मेडिकल खर्च में आ रहा है। तो आप यही समझे कि अगर प्रिवेंटिव मेजर के कारण से, अच्छे पानी पीने के कारण से हजारों लोगों को बीमार ना पड़े, उसी से कितना फायदा हो गया। जी तो बिल्कुल। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेस्ट, लेकिन उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए कि एक तो लोगों को बंद करना है गंदगी फैलाना, और उसके लिए उनको ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं होगा कि मेरा गार्बेज में कहाँ डिस्पोज करूँ, तो सबसे आसान होगा कि मेरा पीछे नदी है उसमें मैं फेंक देता हूँ। यही लोग करते हैं, लिक्विड वेस्ट हो सॉलिड वेस्ट हो। तो ये तरीका है। दूसरा है कि ये जो प्रिस्टीन से नॉन प्रिस्टीन बनने का प्रोसेस शुरू होते ही एक इंटरवेंशन चाहिए बायोलॉजिकल। कुछ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में कि हम क्या करते हैं कि कुछ वीज रखते हैं, कुछ प्लांट्स रखते हैं, उसके जरिए जाने से पानी काफी सुधर जाता है। तो ये सब एक इंटीग्रेटेड टाइप का सोल्यूशन है। कहीं पे जाके अर्बन सिस्टम में तो हमें और कोई उपाय नहीं है। वी हैव टू रिजोर्ट टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वी हैव टू रिजोर्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये एसटीपीज वगैरह में सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि इसका मेंटेनेंस जो है, शुरू में बहुत बढ़िया काम करते हैं, 1-2 साल अच्छा रहता है। जी तो अभी देयर इज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो। गंगा में ऐसा हो गया कि वी आर आस्किंग फॉर कि 15 साल का हमें आप सोल्यूशन दीजिए। आप इसको एफटीपी लगाए क्या करें तो हमें नहीं सवाल पूछना उसमें, लेकिन 15 साल तक आपका जो इनपुट से आउटपुट तक जो प्यूरिफिकेशन है वो बिल्कुल बरकरार रहना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको पूरे 15 साल के हिसाब से प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, अभी आउटपुट पे नहीं या टेक्नोलॉजी पे नहीं। तो इफ वी हैव मोर ऑफ आउटकम बेस्ड एम्फेसिस ऑन सॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से उससे काफी हद तक हमें ज्यादा फायदा मिलेगा अभी जो हो रहा है उससे। जी। तो जिस तरह कहा जाता है कि जो अगर समस्या है उसको बिगड़ने से पहले ही रोक लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हमेशा रखता है। हमेशा हमेशा। तो वही ज़िंदगी बिल्कुल। पर लागू होता है और वही नदियाँ जीवन है उन पर भी लागू होता है कि अ, जो हालात हैं वो खराब हो उससे पहले ही उसे रोक लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप मशीनें लेकर आएँ और फिर साफ करें। आम लोगों की भाषा में यही कहा जाता है कि भई आप पहले नदियों को गंदा कर रहे हैं, फिर मशीनें लेकर आ रहे हैं और फिर उन्हें साफ कर रहे हैं। इससे अच्छा तो अब पहले ही गंदगी को रोक लिया जाए। और जिस तरह रिपोर्ट्स बताती हैं कि वॉल्यूम वाइज मतलब 70% फ्रेश वाटर जो हमारी कंट्री में है वो कंटामिनेटेड है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उन्हें कौन गंदा कर रहे हैं? हम खुद गंदा कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटीज का वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने जा रहा है। लेकिन या तो हम आंखें बंद करके बैठे हैं या हम जानबूझ के कर रहे हैं गंदा। मतलब जिस तरह ये कहा जाता है कि हमारी उदासीनता, हमारी लालच, हमारी इग्नोरेंस यही पर्यावरण को खराब कर रही है। तो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट रिवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्हें संभालना, उन्हें संजोना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत से स्ट्रेचेस एकदम प्रिस्टाइन है, अनटच्ड है, खूबसूरत है, साफ पानी है उनमें, लेकिन अब धीरे-धीरे वहाँ भी पॉल्यूशन काफ़ी पहुँच गया और ब्रह्मपुत्र को गंगा जितना गंदा होने से रोकना है, जो सबसे बड़ी नदी है नॉर्थ ईस्ट की, उस पर अगर बात करें तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हैफाजात सेटलमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोल माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या आप नदियों के एम्बैंकमेंट कर देते हैं, तो वो वाटर क्वालिटी को बहुत खराब कर रहे हैं। और वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम 122 देशों में 120वें स्थान पर हैं, बहुत ही पीछे हैं। स्थिति अच्छी नहीं है। वाटर जो कंटामिनेशन है उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ की समस्याएं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि शायद हम अभी सो रहे हैं और हमें जागने या जगाने की ज़रूरत है। तो क्या हमारा यूथ इस दिशा में कोई भूमिका अदा कर सकता है? क्या एक मास कैंपेन की
एक मास अवेकनिंग की ज़रूरत है, हमारे यूथ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि वो, अब सोशल मीडिया का ज़माना है कि आप बताइए कि यहाँ फ़ोटो खींच के आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए कि यहाँ नदियों में गंदगी है, और इस पर एक आम लोग जब तक नहीं जागेंगे तब तक शायद उतनी जागरूकता आती नहीं है, ना प्रशासन जागता है, ना सरकारें जागती हैं। प्रोफेसर चंदन? जी, एक ऑनरशिप होना पड़ेगा समाज की कि मेरे सामने जो हिस्सा है नदी का, जी। वो मैं गंदगी फैलाने या गंदा होना मैं नहीं दूंगा। तो कई सारे देशों में ये है कि स्कूल है, वो कहते हैं कि इस एक मील का जो नदी है वो हमारे जिम्मेवारी है, और इस एक मील के अंदर हम किसी को कुछ भी गलत काम नदी के लिए करने नहीं देंगे। तो जी। ऐसे एक सक्सेसिव जो एक ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है, रिवर हेल्थ कार्ड कहते हैं इसको, जी। जी। कि नदिया का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में कैसे उसको ध्यान में रखा जाए। एक कार्ड बनता है, उसमें ये लोग रेगुलर उसको इंडेक्स तरीके से लिखता रहता है, और एक रिवर हेल्थ सिस्टम। तो बेसिकली आप एक हेल्दी रिवर पे फोकस आ गया कि रिवर्स को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो जैसे ह्यूमन हेल्थ जरूरी होता है, वैसे ही नदियों को भी बीमार पड़ना देना नहीं है। ये एक अप्रोच हो गया है। मैं मानता हूँ कि अब देश में भी पहले से काफी ज्यादा अटेंशन नदियों को मिलना शुरू हुआ है। काफी तो अभी भी नहीं है, लेकिन पहले से अच्छा है। और जल जीवन मिशन कहे या कुछ भी, इसमें सारा फ्रेश वाटर के ऊपर, पीने की पानी के ऊपर बहुत ध्यान पहले से बन रहा है। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि युव समाज को, यूथ को बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए। एक तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन जो कि इफेक्टिव हो, जो कि एनफोर्सेबल हो, सिर्फ बातों के लिए नहीं है, इस तरीके का होना चाहिए, इन एक्शन होना चाहिए। हर एक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को एक एक नदी को अपनाना चाहिए। मतलब बहुत सारा चीज ऐसे हो सकता है। और नदियों में बहुत ज्यादा ध्यान पहले से हुआ है, और भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि नदी जीवन है। गांव के लिए नहीं, अभी शहरों के लिए भी ज्यादा हो गया है। नेविगेशन के बाद तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ, एक नदी की यूटिलिटीज बहुत सारा होता है। तो मैं मानता हूँ कि ये आपका जो मूव है, आपका जो कैंपेन है, आपका जो ये मीडिया कवरेज है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसमें हिस्सा लिया कि थोड़ा सा अपने बात भी बता दे आपको और लोगों को, और पूरे देश की नदियों पे ध्यान ज्यादा हो, और हम नदियों को सराहें, और इसका हेल्प के लिए जो भी संभव अपने इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो करें। जी, बहुत ज़रूरत है कुछ नदियों को इस समय संजोने की, सँभालने की, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि 60% से ज़्यादा हमारे देश का जो सीवेज है वो नदियों में, स्ट्रीम्स में अनट्रीटेड ही रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो हमारी आधे से ज़्यादा देश की नदियाँ हैं वो प्रदूषित हैं, पॉल्यूटेड हैं। मतलब जागने की ज़रूरत है और जगाने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर चंदन मोहंता, IIT गुवाहाटी से आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है पूर्णिमा जी, आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।